केन्या में मेरा फोकस है, क्योंकि एक छोटा सा देश है, बट उसी देश को अगर मैं कृष्ण, जैसे केन्या जो उसका पहला शब्द है के है, तो उसमें कृष्ण भगवान तो बसते ही हैं, क्योंकि के से ही शुरू होता है. But when I started to read Bhagavad Gita, I said, yes, this is the answer on my questions. आप राजपूत हैं? जी मैं राजपूत. मैं भी राजपूत. हाँ जी माशाल्लाह. तो अब ये बताएं, ये आपने कहा कि राजपूत हम लोग कहीं ना कहीं से हमारे बड़े वहाँ से उठ के आए थे, ठीक है, और जैसे कि मेरे हमारा खून है, इंडिया हमारा खून एक है. You know, drugs, from porn, from, you know, watching the videos, from sex, from many things, people becoming addicted. Obviously यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था. दोस्तों, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें मर्द या औरत जो भी हो सबको इक्वालिटी मिलती है. किसी में भी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है. यही सबसे बड़ा कारण है कि विदेशी लोग, रशियन लोग, अमेरिकन लड़कियां सभी सनातन धर्म को पढ़ती है, उसके प्रति अट्रैक्ट होती है और अपना सब कुछ घर बार छोड़ के भारत में आके, वृंदावन हो या कई सारे ऐसे उत्तराखंड में ऐसे आश्रम है, वहां पर आके अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेचकर अपना सन्यासी का जीवन जीती है. आज एक ऐसी ही फॉरेनर अमेरिकन लड़की की पूरी स्टोरी इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, जो कि अमेरिका से अपने एक्स हस्बैंड, जो कि एक मुस्लिम था, उसको फोर्स करता था कि तुम मीट खाओ, मतलब गंदी कामों के लिए उसको फोर्स करता था इस्लाम कबूल करवाने के लिए. लेकिन उसने जब भगवत गीता पढ़ा तो उसने सारा कुछ छोड़ के भारत में आके एक सन्यासी बन गई और अपना जीवन यापन कर रही है. ये वीडियो थोड़ी सी स्टार्टिंग में 2 मिनट के लिए इंग्लिश में है, तो आप थोड़ा सा उसको देख लेना, उसके बाद आपको हिंदी में देखने को मिलेगा. तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं. As you told, nobody will help you when you are in depression, anxiety. So who can help us, or how can we come out from this situation if anyone suffering from the depression, anxiety? Yeah, if you're suffering from depression, you have to see where you are in present, what is disturbing you a lot, and avoid everything what is a tamagun. In tamagun, people going to sleep late, people wake up late, people are trying to get happiness from alcohol, from, you know, drugs, from porn, from, you know, watching the videos, from sex, from many things. People becoming addicted. I have a story with connection with Muslims also, and A story with Muslim? What type of? Actually, my ex-husband, he was Muslim, and I had a so big challenge in my life because he was forcing me to be Muslim, and I tried. You want to convert you Muslim? Yes. I really tried to read the Quran. Did you say Quran? Yeah, Quran, and I really wanted to understand the meaning, what he sent me, and Have you read Quran? I did not read fully, but almost. Yes, almost. And when I realized what people spoke, most of Muslims, what they're speaking, and what is Quran, it's absolutely different. But really, Muslim religion really very peaceful, and there is no anything like go and fight with people, go and kill them, go and do this, do this. It's the Muslim religion not about this. That people by their mind they change in this, because the words of God cannot be about disturb and kill about other people just because they follow in another religion. And just because of ex-husband, I said, okay, I will try to read, I will try to understand reality. Of course I read, there was nothing bad, but still I did not feel resignation. But when I started to read Bhagavad Gita, I said, yes, this is the answer on my questions, and everything about soul, everything about God. Where is He living? How does He looks? What is our connection with Him? What should we do? What we should not do? This was, you know, it looks like not I got the information from outside. It looks like it was all the time inside me. It looks like I did not get it from somewhere. Looks like something like opened inside me. आज तक आप कितने देशों में घूम चुके हैं सिर्फ प्रचार करने के लिए? मैंने अमेरिका में बहुत ट्रैवल किया था, इन US, इन लंदन, अफ्रीका में, स्पेसिफिकली केन्या में मेरा फोकस है, क्योंकि एक छोटा सा देश है, बट उसी देश को अगर मैं कृष्ण, जैसे केन्या जो उसका पहला शब्द है के है, तो उसमें कृष्ण भगवान तो बसते ही हैं, क्योंकि के से ही शुरू होता है. तो उसको हम थोड़ा कृष्णा कॉन्शियस बना दे. गीता के बारे में हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं. एक दिन क्या हुआ था, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, हम एक मॉल में थे, बड़े से मॉल में थे अफ्रीका में,
और क्या हुआ, मैंने सोचा आज ना तो मुझे सिर्फ गीता ही बांटनी है, तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने सिर्फ उसको टेबल में ऐसे अच्छी तरह से लगाया। एक सामने से एक अफ्रीकन बंदा आता है, मुझे बोलता है आई नो दिस बुक, मुझे पता है ये किताब कौन सी है, मुझे पता है कृष्ण कौन है और मुझे पता है अर्जुन कौन है, मुझे आप ये किताब दे दीजिए। और मैं तो बहुत शॉक हो गई। हाँ, और वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि उसने आके मुझे बताया आई वांट दिस बुक, आई विल टेक दिस बुक। तो हम क्यों ना करें प्रचार अफ्रीका में तो हम जोरों शोर से करेंगे। आपने मतलब बेसिकली आपका जो पूरा फोकस है वो अफ्रीका में, केन्या में पूरा देश को सनातन बनाने के लिए है। हाँ, आपका एक देश पे सिर्फ केन्या पे फोकस है मेनली। ये जहाँ जितनी राजपूत फैमिली बैठी है, राजपूत। आप राजपूत हैं? जी मैं राजपूत। मैं भी राजपूत। हाँ जी माशाल्लाह। तो अब ये बताएं, ये आपने कहा कि राजपूत हम लोग कहीं ना कहीं से हमारे बड़े वहाँ से उठ के आए थे, ठीक है, और जैसे कि मेरे हमारा खून है, इंडिया हमारा खून एक है। अच्छा, हम सारा एक बीज है। ये भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज के जो राजपूत है ना, वो उनका बेटा कन्वर्ट हुआ था। ये राजपूत जितने भी है ना, ये उसी की औलाद में। जी जी जी, नहीं राजपूत बहुत सारे कन्वर्ट हुए हैं। ये असल में राजपूत, ये जो हम कहते हैं ना, ये जो राजपूत, ये ऐसे बेसिक और बुनियादी और फंडामेंटलिस्ट लोग होते हैं। अच्छा, कि ऐसे इनके ज़हनों के अंदर ये जो जितना दीन अगर इस वक्त मैंने पूरी दुनिया के 32 मुल्क घूमे हुए हैं। अच्छा, और 8 ज़ुबानों का मास्टर हूँ मैं, चाइनीज़, रशियन, अरबी, इंग्लिश, फ़ारसी, पश्तो, तुर्की, ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, क्योंकि मैं तबलीग का काम करता हूँ। किसी ने कहा है कि अगर आपने आज को जानना है तो अपने कल को के बारे में पहले जाने। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब बरसगीर की बात करें तो यहाँ पे पहले इस्लाम तो बाद में है, पहले यही मज़हब चल रहा था, हिंदुइज़्म और ये चीज़ें। आप क्या कहना चाहेंगे? किस चीज़ के ऊपर क्या कहना चाहूँगा? ओवरऑल के यहाँ पे आपके, अगर मैं अपने फोर फादर्स की बात करूँ, अपने आपके फोर फादर्स के बारे में, आप अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप लोग? हम लोग सिख थे। मेरे नाम फादर प्रीतम सिंह थे। अच्छा, हाँ, हम डिल्लू हैं और हम सिख हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। अगर हम चले जाते हैं, अभी जा रहा 2023 और सन अगर 600 में चल जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे, और तब यहाँ पे इस्लाम नहीं आया था। हुए कोई जबरदस्ती, कोई अपनी मर्जी से, और इन चीज आपने देखा इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचिए कि भारत में रह के कुछ लोग ऐसे राजनीति के चलते अपने सत्ता बचाने के लिए, कुर्सी के लिए उसी राम को बदनाम करते हैं, उसी कृष्ण को बदनाम करते हैं, सिर्फ अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए। वहीं दूसरे देश की लड़कियां सनातन धर्म को पढ़ के और वो सब कुछ छोड़ के सन्यास की जीवन जीती है और ये प्रण लेती है कि मैं केन्या ऐसे देश जहाँ पे लोग इस तरह का जीवन जीते हैं, जो मदिरा, सेक्स, मतलब इस तरह का जानवरों बारे जीवन जीते हैं, उसके जीवन में भगवत गीता लाऊंगी, उसको सनातन धर्म के बारे में बताऊंगी और लोगों को सनातन बनाऊंगी। मतलब एक उसका सोच देखिए, और दूसरे अपने भारत में कुछ ऐसे लोग जो अपने ही सनातन का विरोध करते हैं, और पाकिस्तान में तो हर हमेशा यही होते रहता है। बाकी इन फॉरेनर लड़कियों के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।